Hi, good morning, all. Good morning, all the attendees, and thank you so much for joining in. Uh, I personally thanks and welcome you all to attend this webinar. You're taking the time on Sunday and you're attending this webinar today. Thank you so much for attending this, and thank you joining for joining. I personally welcome you all, and I'm glad to see you all, guys. You're attending on Sunday as well. So today we are going to learn about more and more about the fatty liver. It's called as NAFL. We are going to discuss on NAFL, that is non-alcoholic fatty liver. You're going to learn about non-alcoholic fatty liver, why it is happening, what's the symptoms, what exactly it is, or what is the condition, who is more prone to this, right? So I personally welcome you all. Thank you all the attendees for joining in. Please, you can pin me hi on the chat box. I wanted to know कि आपने कहाँ से join किया है मुझे, uh, because I can see lots of attendees are joining. Okay, you can send me in the chat box from where you are joining. And thank you so much for joining the webinar today. And today we are going to discuss about more on fatty liver conditions, what exactly it is. Thank you so much for joining. And let me introduce myself, Priya Jain and I'm the nutritionist by profession. I welcome you personally. Thank you so much, Aditi ji. Thank you for joining in, Manik ji. Okay, hello, Ms. Ramana. All right. Thank you so much for joining in. I can see lots of attendees are joining. Let them join as well. Then we'll quickly start the session. Okay, let's wait for 5 to 10 minutes and then we'll quickly run the session. And you're going to be learn about more and more about the NAFL conditions. Okay. Hello, Amit ji. I welcome you and delighted to have you here. Okay, Aditi ji, welcome. Manik ji, okay, Manik जी दिल्ली से ज्वाइन किया है, आदित्य जी ने नोएडा से ज्वाइन किया है हमें. And let me tell you, I joined from Gurugram. Thank you so much for joining in. Please, you can drop the message in the chat box. I can see lots of patients are joining. Okay, all right. Thank you for joining. I can see lots of attendees are joining. So please drop me a message in the chat box. I also wanted to know, where are you from? I'm from Gurugram. All right. So lots of attendees are there. Okay. Miss Ramana is from Hyderabad. Amitji from Noida. All right. Thank you guys for joining in. Just wait for 5 minutes. We're going to start the session soon. Okay. All right. Meanwhile, you can drop me the message in the chat box. Where are you from? And आपने कहाँ से मुझे join किया है? Okay, Dhruv ji. Thank you so much. And welcome, Mr. Dhruv, for joining in. All right. I'm all good. I'm good. How are you, Mr. Dhruv? Thank you for joining in. Okay. आपने दिल्ली से join किया है? Great. I can see from various part of the countries people are joining, and I glad to know there is a curiosity to know about to learn the new things about NAFL. Okay. Welcome, Nikita ji. Okay. She's from Mumbai. I welcome you. Thank you for joining in. All right, Yogi ji, welcome. Welcome, Yogi ji. And he's from Hyderabad. All right, great to see you. Okay. All right. So let me introduce myself. Myself, Priya Jain, and by profession, I'm the nutritionist working with Dr. Reddy and handling more than 1,000 patients. And today we are going to discuss about NAFL problem. And if you like all are visible my screen, uh, if you look out the screen particularly, if just tell me like if you can see image A, image B, what you think about कि image A में जो आप देख पा रहे हैं, she's like he's having a more fatty liver condition, और image B आपको लगता है कि इनको fatty liver का condition ज्यादा हो सकता है. What do you think? I wanted to know your opinion कि what do you think कि इन दोनों में से किसको आप वोट करेंगे जिसको फैटी लिवर का कंडीशन होने के चांसेस ज्यादा हैं, और ही और शी इज मोर प्रोन टू गेटिंग NAFLD. Okay, please drop me your answer in the chat box. I wanted to know and how aware you are. So
All right, lots of people are saying ki B is the answer. Lots of voting for the A. All right, okay. So let me tell you what is NAFLD. NAFLD is non-alcoholic fatty liver, and if, as the picture suggests, picture A is having a more what to, or is having a more prone to getting NAFLD condition, because he is like obese. This is the one of the condition. He is smoking, and he's having a sedentary lifestyle. So these are the factors, that's why he's having more chances to get NAFLD. Right, so people who are voting for A, as does that, they are absolutely correct. So picture A is more having the chances to getting prone to NAFLD. So, how you guys having benefits with the session today? So, you guys are like, your all the attendees are who is joining. They are going to learn about the causes of the fatty liver condition. They are going to learn about there's no crash diet to reverse the fatty liver condition, because it's all easily reverse. You can easily reverse this condition by doing a, by following the good diet, by following the good exercise, how to go for the sustainable weight loss. Or you're going to learn about why the Indians having more prone to NAFLD if we compare to other countries. And you're going to learn about what are the myths and what are the facts about specific food. Or you're going to learn about the like what is NAFLD, why it is happening to you, and why there is more chances to the patient who's having a more diabetes condition and all. We are going to learn about more and more, so stay tuned till end. Right, so today we have a special guest in the house, and she's a very good friend of mine. She's Miss Simran Yadav, is having a gold medalist, and she's also counseling 1,000+ patient, and she's having a very good knowledge on NAFL, and she's going to tell us about more and more about myth and fact about NAFL. So welcome, Simran. Thank you so We are much, Priya. delighted to have you. Yeah. Yes, thank you so much, Priya, for the introduction, and I'm excited to be there on the panel today. And I welcome all the attendees for joining us, especially on our Sunday morning. And it definitely shows your dedication and commitment towards learning about what is fatty liver and how you can reverse it with holistic measures and through dietary regime. Thank you so much, everyone, for joining in. So, before I get started and we talk about what is fatty liver, why it happened, what are some of the common causes, let's understand what are some of the common functions of liver and why liver is so much important and why we need to look out for our liver health. So, kabhi kabhi I'll be talking in Hindi and at times I'll be also speaking in English as well. So, because I know there's a mix of audience both from North India, South India, West and East. So, I hope English is okay with everyone. If yes, please drop a yes in the chat box and I'll get an idea about that. Okay. Please let me know in the chat box that you're okay with English. Okay. Kavita ji says yep. Yogi also says yes. Thanks. Thanks everyone for the heads up. ठीक है तो अभी पहले विल अंडरस्टैंड कि लिवर क्या है एंड व्हाई आर लिवर हेल्थ इज सो मच इम्पॉर्टेंट तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि अब मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ आई बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द कॉमन फैक्ट्स जो हमारे लिवर के बारे में हैं लिवर जो है आपकी ह्यूमन बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन है सो अगर मैं एक औसतन व्यक्ति के बारे में बात करूं या फिर मैं एक अडल्ट के बारे में बात करूं तो वेट ऑफ अ लिवर इज़ 1.4 kg ऑन एन एवरेज मैं बात कर रही हूँ एंड साथ ही साथ आपका जो लिवर है वो आपकी बॉडी में 500+ फंक्शंस परफॉर्म करता है ये फंक्शंस इट कैन वेरी फ्रॉम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अल्कोहल साथ ही साथ आप जब कोई दवाइयाँ लेते हैं तो हम हमेशा आपका डॉक्टर आपको हमेशा बोलेगा कि आपके लिवर पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर जब आप किसी प्रकार की हैवी स्टेरॉइड या मेडिकेशंस ले रहे हैं तो लिवर उसका डिटॉक्स
डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। दूसरा चीज़, लिवर आपके बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज करता है, स्पेशली फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो होते हैं आपके A, D, E, K। एंड आपने हमेशा नोटिस करा होगा, जो एक फैटी लिवर का पेशेंट होता है, सिम्टम्स जब हम बात करते हैं फैटी लिवर के, बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस सिम्टम्स नहीं होते हैं, इंसान को एकदम से पता नहीं चलता है कि उन्हें फैटी लिवर हो रहा है, बट एक फटीक का प्रॉब्लम हमेशा रहता है। अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि सिमरन, नाफिल जब हमें पता चला था, तो हमें जो फटीक का प्रॉब्लम था, जो लेथार्जी थी, वो बॉडी में बहुत लंबे समय तक चल रही थी। वो इसलिए चल रही थी बिकॉज अगर आपकी लिवर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसका स्टोरेज, उसका एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में कॉम्प्रोमाइज रहता है। तीसरी चीज़, आपका लिवर जो है ब्लड शुगर बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। शॉर्टली आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे एक जो जिस इंसान की कॉम्प्रोमाइज लिवर हेल्थ होती है, दे ऑल्सो हैव कॉम्प्रोमाइज ब्लड शुगर लेवल, उन्हें डायबिटीज़ होने के चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 50% तक बढ़ जाते हैं। अब चौथी चीज़, यहाँ पे आपका लिवर जो है आपकी फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल में हेल्प करता है। बाइल जो है वो आपकी बॉडी में फैट्स को तोड़ता है। सो दैट्स इन समरी, अभी मैंने कुछ 4-5 फंक्शंस के बारे में ही बात करा है, बट लिवर हैज़ मोर देन 500 फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लिवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। नाउ व्हाट इज़ फैटी लिवर? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं लिवर के बारे में बात करती हूँ, तो लिवर में फैट होना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, बट कितने अमाउंट पे, कितने अप्रॉक्सीमेशन पे वो होना नॉर्मल होता है। अगर आपकी लिवर सेल्स में 5% तक फैट है, लेस देन और 5% तक फैट है, सो इट्स अ हेल्दी लिवर। बट एट एनी पॉइंट अगर आपका जो वो फैट है इट गोज अबव 5%, तो वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बन जाता है। इन सिंपल, फैट एक्यूमुलेशन आप मेरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। सेकंड स्टेज की अगर मैं, या फर्स्ट स्टेज की जब मैं बात कर रही हूँ फैटी लिवर में, नाफिल जिसे हम बोल रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली जब आपके लिवर सेल्स में 5% से ज़्यादा फैट होता है। अब अगर आपके लिवर सेल्स में फैट भी एक्यूमुलेट ज़्यादा हो गया है, अब साथ ही साथ उसमें इन्फ्लेमेशन भी चली गई है, थोड़ी थोड़ी स्कारिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो आपका नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस यानी कि नैश बन जाता है। नैश के बाद फिर उसका बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्नोसिस होने लगता है। देन इट चेंजेस टू सिरोसिस, जहाँ पे आपकी स्कारिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है टिश्यू की। सिरोसिस के बाद दो ही आउटकम्स देखे गए हैं, या तो इंसान को लिवर कार्सिनोमा डेवलप होता है, लिवर कैंसर डेवलप होता है, या फिर उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। एंड यूजली द कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांट इज एनीवेयर बिटवीन 25 to 30 lakhs, या वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज आज के टाइम पे जो फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, अगर आप इंडिया में देखिए, अप्रॉक्सीमेटली इट्स 40%। एंड बहुत सारे लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अब आगे जा रहे हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है, फैटी लिवर तक रुकता नहीं है। इट अगर आप यहाँ पर भी देखें, तो आपका जो हेल्दी लिवर है, इट गोज टू फैटी लिवर के बाद नैश, फिर सिरोसिस, फिर कार्सिनोमा, या फिर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायग्नोसिस जो है वो फैटी लिवर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जल्द से जल्द अर्ली डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। यस प्रिया। सिमरन, हाँ, यहाँ पर हमारे अटेंडीज को प्लीज आप बताइए कि हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं कि उनको फैटी लिवर है या नहीं है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनको फैटी लिवर का कंडीशन जो है होने वाला है। तो इस पे आप कुछ कहिए। ओके, थैंक्स प्रिया फॉर दैट क्वेश्चन, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, फैटी लिवर जो है वो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। यानी कि फैटी लिवर में, जैसे कि मैंने पहले बात करी, कि कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल कभी कोई व्यक्ति था, दे सेड ओके आई वांट टू गो फॉर अ फुल बॉडी टेस्ट, और आई वांट टू गो फॉर अ फुल बॉडी चेकअप, तो वहाँ पे दे गॉट टू नो दैट देयर लिवर प्रोफाइल हैज़ बीन डीरेंज्ड, उनके ALT AST हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज। सो दैट्स हाउ दे गेट टू नो कि ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर लिवर। बिकॉज अगेन लिवर का अगर मैं बात करूं, लिवर के कोई सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं होते, तो कभी भी पेन सेंसेशन नहीं आता है। तो लिवर के रीजन में इंसान को कभी भी फैटी लिवर में पेन नहीं आएगा, उसके सराउंडिंग एरियाज में पेन वो हमेशा नोटिस करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है, येस डेफिनेटली लिवर फंक्शन टेस्ट आर देयर। अनदर नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट वी हैव टू स्कैन वेदर यू हैव फैटी लिवर इज ऑल्सो फिब्रोस्कैन। फिब्रोस्कैन सिमिलर टू अल्ट्रासाउंड आपका रहता है, मेजर करता है कि वाइब्रेशंस कितने फास्टली जा रहे हैं। अगर वाइब्रेशंस बहुत तेज़ी से आपके लिवर में जा रहे हैं, सो इट मीन्स आपको फिब्रोसिस या स्कारिंग के चांसेस हैं। अगर वाइब्रेशंस धीरे से जा रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव हेल्दियर लिवर। सो दीज आर सम ऑफ द टू कॉमन वेज टू टेस्ट एंड सी। सिमरन, ये ज़रूरी है कि हमें फिब्रोस्कैन ही कराना पड़ेगा या फिर हम लोग LFT जो है हमारा ब्लड टेस्ट है, हम वो कराकर भी हम जान सकते हैं कि उन्हें फैटी लिवर का कंडीशन हो सकता है या नहीं?
Yes. Priya, in this condition or in this stage, I usually say doctor is the best person to recommend you whether you should go for a liver function test or whether you should go for a fibroscan depending on your stage condition. So it depends on doctor to doctor what test they actually want to recommend to their patient. Okay, all right. Yes. सो अगेन फिब्रोस्कैन की हमने यहाँ पे स्टेजेस दी हैं कि किस प्रकार की स्टेजेस रहती हैं। F0 फिब्रोसिस, नो फिब्रोसिस है। F1 थोड़ा सा माइल्ड फिब्रोसिस, स्कारिंग होने लगी है। सो आई रिक्वेस्ट अटेंडीज कि अगर आपने फिब्रोस्कैन या लिवर टेस्ट कराया है, प्लीज़ राइट इट इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो कि आपकी फिब्रोस्कैन की क्या स्टेज है, एट व्हाट स्टेज आर यू एट राइट नाउ फिब्रोसिस लेवल के लिए। एंड अगर आपने लिवर फंक्शन टेस्ट कराया, प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यू कैन प्रॉब्ली राइट फिब्रोस्कैन स्टेज 1, 2, 3, या अगर आपको स्टेज नहीं पता है तो यू कैन प्रॉब्ली राइट फिब्रोस्कैन या लिवर फंक्शन आपने टेस्ट कराया है। I request all the attendees, please write it in the chat box as well. Then probably we can talk about more on it. Simran, meanwhile the patient, attendees are answering in the chat box. हम ये बता देते हैं कि patient को कि is this the reversible condition or not reversible? कहाँ तक जो है कि कौन से level तक जो हम जान सकते हैं कि इस level के बाद ये reversible नहीं होगा, या कैसे हम बता सकते हैं attendees को? Yes. So I can see Yogi and Naresh has written in the chat box कि उनका फिब्रोस्कैन का जो स्टेज 2 है, मॉडरेट फिब्रोसिस पे हैं वो अभी। तो मॉडरेट फिब्रोसिस से Mhm. आप वापस फैटी लिवर तक जा सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट, बट लार्ज पूल ऑफ रिसर्च सेज कि आप मॉडरेट फिब्रोसिस के बाद भी यू कैन रिवर्स योर फैटी लिवर। तो जैसे अभी मैंने यहाँ रिवर्सल की बात करी है, अगर आप हेल्दी लिवर हम्म, से फैटी लिवर तक की स्टेज में फैटी लिवर से आप वापस हेल्दी लिवर में आ सकते हो, इट्स रिवर्सिबल। फैटी लिवर से अगर आप नैश की स्टेज में जा रहे हो, अगेन नैश में भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट टू पेशेंट, आपका रिवर्सल हो सकता है। अगर नैश बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या सीवियर हो गया तो वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। सो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको NAFLD स्टेज 1 स्टेज 2 पता चल रहा है, ग्रेड आपको पता चल रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवर्सल पे काम करें उसके लिए। सो दैट्स प्रिटी मच कि रिवर्सल के क्या क्या चांसेस रहे हैं फैटी लिवर के लिए। Okay, so now that we have talked about what is liver, fatty liver क्या होता है, and आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसा पता चल सकता है कि आपको फैटी लिवर है, आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि जो NAFLD जो है, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिवर पे इम्पैक्ट नहीं डालता है, वो साथ ही साथ आपके हार्ट पे, आपके पैनक्रियास पे, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पे, बहुत सारे ऑर्गन्स पे जो है आपका जो लिवर है वो इम्पैक्ट डालते हैं। इनफैक्ट वी ऑलवेज से देर इज़ अ बाई डायरेक्शनल लिंक, यानी कि अगर आपको NAFLD है सो देर आर 50% चांसेस कि आप डायबिटीज़ भी डेवलप करेंगे आगे चल के। एंड अगर आपको डायबिटीज़ है, देर अगेन इक्वल चांसेस कि आप फैटी लिवर भी आगे डेवलप करेंगे। सो हमेशा कहा जाता है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कहीं NAFLD ना डेवलप हो रहा है, या आपके लिवर के अराउंड फैट एक्यूमुलेशन बढ़ तो नहीं रहा है। सो दैट्स द वेरी रीज़न हम हमेशा NAFLD को एक साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि NAFLD जो है वो आपके हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ा देता है, एंड साथ ही साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है आपकी बॉडी में उसे भी कम कर सकता है। एंड अगर आप देखिए ग्लोबली जो है 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज सफरिंग विद NAFLD करेंटली, विच इज़ अ प्रिटी ह्यूज पॉपुलेशन, 25% जो ग्लोबल प्रिवेलेंस आप देख पा रहे हैं। एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंगली देखा गया है कि मेल्स और फीमेल्स में जो ब्रेकडाउन है वो बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप देखिए मेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलपिंग NAFLD कंपेयर टू फीमेल्स। क्यों? क्योंकि मेल्स के अराउंड जो होता है एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी कि एब्डोमिनल ओबेसिटी के मतलब क्या है मेरा, आई बी टॉकिंग अबाउट किस प्रकार से जो इंडियन मेल फिनोटाइप होता है, उनकी लार्ज बेली रहती है और थिन एक्सट्रीमिटीज़, उनके पतले हाथ रहते हैं। वो इसलिए बिकॉज मेल्स आर मोर प्रोन टू एब्डोमिनल ओबेसिटी, बहुत आसानी से उनके पेट के आसपास या इन और लिवर के आसपास फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, वेयर एज कम्पेयर टू फीमेल्स यहाँ इनके एब्डोमिनल ओबेसिटी के चांसेस कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, जो फीमेल हार्मोन्स है, वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव इफेक्ट देते हैं फीमेल्स को यहाँ पर। सो दैट्स वाई द प्रिवलेंस आप देखिए 40% मेल में NAFLD का प्रिवलेंस देखा गया है एंड 26% फीमेल में देखा गया है। So next up,
आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि किस प्रकार से यस NAFLD का भले ही प्रिवेलेंस आप देखें 25% ग्लोबली है, पर एट द वेरी सेम टाइम इफ़ यू लुक आउट इन द इंडियन पॉपुलेशन जो प्रिवेलेंस है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 40%, यानी कि जो इंडियन पॉपुलेशन है दे आर एट मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग NAFLD। क्यों? क्योंकि जो इंडियन का जो जीन रिस्क होता है, एक फिनोटाइप होता है, या मैं अगर if I talk in simple language, there is a certain gene which makes Indians more prone to developing NAFLD। यानी कि अगर आप पतले हैं, मोटे हैं, अल्टीमेटली अगर आपके पास वो जीन है, स्पेशली PNP PLA3 एक जीन होता है जो कि इंडियंस को और प्रोन बनाता है स्टमक के आसपास फैट एक्यूमुलेट करने के लिए, लिवर के आसपास फैट एक्यूमुलेट करने के लिए। अगर आप मेरी स्क्रीन भी देखें तो यहाँ पर यहाँ पर यू कैन सी देयर इज अ बिग बेली, एंड जो हाथ है आप इंसान के पतले देख सकते हैं, एंड यूजली जो एक औसतन भारतीय होते हैं 50% ऑफ देम लुक लाइक दैट, एंड दैट इज वॉट is actually responsible for making Indian population at risk। globally 25% prevalence देखा गया है, but in Indian demographic there is a 40% prevalence of non-alcoholic fatty liver disease। so it's very very important कि आप अपना monthly once in 6 month आप screen कराइए, आप ultrasound कराइए, आप liver function test कराइए, because by hook or crook Indian population is ultimately at risk because of the genetic risk that we have, because Indians are more prone to storing fat around their liver and abdomen। ओके सिमरन, क्या आप बताएंगे, हमारे अटेंडीज जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फैटी लिवर कॉज करते हैं? क्या ऐसा कौन कौन सी चीजें जो हैं इंक्लूडेड रहते हैं जिसकी वजह से हमें फैटी लिवर कंडीशन हो सकती है? एब्सोल्युटली। प्रिया, जैसे कि मैंने अभी बात करी, जेनेटिक रिस्क इज़ वेरी वेरी क्रूशल है, जो कि इंडियन पॉपुलेशन को और एट रिस्क बनाता है। इसके साथ साथ देर आर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स दैट इफ़ यू आर हैविंग एन अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी फूड्स अगर आप ले रहे हैं, जंक फूड, और यूर ईटिंग मोर ऑफ एन आउटसाइड, सो डेफिनेटली इट विल मेक यू मोर प्रोन टू डेवलपिंग फैटी लिवर। सेकेंड, अगर आप चेन स्मोकिंग कर रहे हैं, निकोटीन का कंजप्शन ज़्यादा है, तो निकोटीन क्या करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा देता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने की वजह से कॉर्टिसोल आपका जैसे एक हो जाता है, एड्रेनलिन हो जाता है आपका जैसे एक साथ। तो ये कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन क्या करते हैं, आपके लिवर के आसपास और फैट एक्यूमुलेट करने लगते हैं। और साथ साथ इफ़ यू आर हैविंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स आपके लिवर पे डिटॉक्सिफिकेशन का लोड बढ़ाते हैं, मेडिकेशंस अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ क्लिनिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि जीन मेकअप के बारे में बात करा है। जो इंडियन जीन मेकअप है वो उन्हें और प्रोन बनाता है फैटी लिवर डेवलप करने के लिए। अब डायबिटीज़ अगर आपको है, ओबेसिटी अगर आपको है, तो यही सब कुछ कॉजेज़ हैं जो कि इंसान को फैटी लिवर के लिए और प्रोन बनाते हैं। ओके, सो नाउ मैं अपने अटेंडीज से ये पूछना चाहूंगी कि आपको जो है फैटी लिवर कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? क्या डू यू आल्सो हैव अ क्रॉनिक फटीग? क्या पूरे दिन थकान महसूस हो रही है या बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं? प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आप किस तरह से सफर कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। क्या आपको भी पूरे दिन टायर्डनेस और इवन आफ्टर प्रॉपर रेस्ट, आफ्टर प्रॉपर स्लीप, आप जो है इस फटीग की कंडीशन से सफर कर रहे हैं? तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज अफेक्टिंग यू, और इधर कि यू आर compromised with your sleep, you're having a struggle with the poor sleep, और आप पूरे दिन जो है यू आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक। कहीं ना कहीं ये आपके वर्क को इफेक्ट कर रहा है, राइट? आप पूरे दिन जो है टायर्ड फील कर रहे हैं इवन आफ्टर रेस्ट, और काफी लोगों को जो है डाइजेस्टिव इश्यूज भी आ रहे हैं। दे आर हैविंग अ ब्लोटिंग कंडीशन, दे आर आल्सो हैविंग सम हेवीनेस विदाउट लाइक फूड के बाद, आफ्टर ईटिंग अ फूड दे आर फीलिंग हैवीनेस और ब्लोटेड फील कर रहे हैं काफी लोग। सो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और मी एंड सिमरन बोथ वांटेड टू नो कि आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है। अगर आप में इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आपको कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप अपने स्लीप से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या फिर पूरे दिन जो है टायर्डनेस फील कर रहे हैं या ब्लोटिंग का कंडीशन आ रहा है? प्लीज राइट इट Yes, डाउन इन द चैट बॉक्स yes, कि आपको
ये कैसे इफेक्ट कर रहा है? प्रिया, मैं ऑलरेडी देख पा रही हूँ। आई थिंक नरेश हैज़ रिटन कि लो एनर्जी रहता है एट वर्क प्लेस बिकॉज ऑफ NAFLD। अगेन नरेश, इट्स वेरी हम्म। कॉमन। आई थिंक फटीग जो भी यहाँ पे हमने सिम्टम्स स्क्रीन पे बताए हैं, फॉर एग्जांपल क्रॉनिक फटीग, लेजीनेस, टायर्डनेस, अब दूसरा कॉम्प्रोमाइज स्लीप, रात को नींद ढंग से नहीं आती, कॉन्स्टेंटली देर आर रेसिंग थॉट्स गोइंग इन माइंड। तीसरा डाइजेस्टिव इश्यूज, ब्लोटिंग या हैवीनेस डेवलप हो जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो कि हम NAFLD के लिए देखते हैं, अक्सर हम उसे अवॉइड कर देते हैं। बट ये हमें हो बहुत लंबे समय से रहे हैं, बट वी आर नॉट रियली लुकिंग out for these symptoms. And I can see Nachiketa is also saying early tiredness, joint pain बहुत common है. Let me tell you, जो joint pain है वो आपको NAFLD या fatty liver की वजह से नहीं हो रहा है. It is actually happening कि आपकी obesity या फिर आपका वजन ज़्यादा है, and that is why आपका knee pain या joint pain बढ़ रहा है. Yes, अगर दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि फैटी लिवर जो है आपका बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी को देखता है, तो कई बार उसकी वजह से भी इंसान को जॉइंट पेन हो सकता है। बट लार्जली ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो कि हम जॉइंट पेन में देखते हैं। योगी सेइंग फटीग एंड टायर्डनेस श्योरली डिड नॉट cause what was the NAFLD issue. Yes, योगी, फटीग, टायर्डनेस, लेथार्जी फील करना बहुत बहुत कॉमन है एक NAFLD के पेशेंट के लिए। कविता जी कह रही है डिफ़िकल्टी इन लूजिंग वेट। यस कविता जी, इट्स अंडरस्टैंडेबल। आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि किस प्रकार से जो एक NAFLD का पेशेंट है उन्हें कई बार कभी उनकी एक साइकिल चलती है जिसे मैं यो डाइटिंग कहती हूँ। कभी एकदम से वज़न बढ़ जाता है, फिर डाइटिंग करते तो वज़न कम हो जाता है, जैसी डाइटिंग छोड़ते तो वापस वेट गेन चालू हो जाता है। सो इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज यो डाइटिंग। कविता जी, आई विल बी शॉर्टली टॉकिंग इट अबाउट कि कैसे आप NAFLD में अफेक्टिवली सस्टेनेबल वेट लॉस कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर द क्रैश डाइट्स। ओवर टू यू प्रिया। या All right, Simran, thank you for explaining the details here. So, अभी हमारे attendees की टर्न है और लेट मी सी कि हमारे attendees जो हैं कितना अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर के, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा जो है मिथ्स हैं चीज़ों को लेकर के। तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारे attendees का क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के। तो पहले कार्ब्स की बात कर लेते हैं, लाइक व्हाट यू थिंक, all the joinees, please let me know what you think about carbs. Carbs are all carbs are bad for you or they make you gain weight? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि सारे मतलब कार्ब्स खाने से जो है वेट गेन हो जाते हैं या हम जल्दी मोटे होने लगते हैं? तो क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स कि आप कार्ब्स को लेकर के क्या आपके जो है मिथ है, क्या आप फैक्ट आप कार्ब्स के बारे में जानते हैं या आप भी ऐसा सोचते हैं कि कार्ब्स जो भी कार्ब्स हैं वो they are all bad for the body? Please comment in the chat box कि आप क्या समझते हैं कि कार्ब्स एग्जैक्टली कार्ब्स क्या होता है या फिर सारे ही कार्ब्स खाने से जो है वेट गेन होता है या दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी? Please write it down in the chat box. I wanted to know, and let's make the session more interactive by participating in this particular session. So please write it down कि all carbs are bad or it depends carbs to carbs. Okay, कविता जी कह रहे हैं कि difficult in losing weight, carbs are responsible for weight gain. ओके, कविता जी का जो कहना है सिमरन कि कार्ब्स आर रिस्पॉन्सिबल जो है वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अपने डाइट में बिकॉज दे थिंक दैट कि कार्ब्स आर गेनिंग देयर वेट। तो आप मुझे बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली द आंसर इज। सो आई यस। थिंक इट्स completely wrong. Yes, I think Priya, along with that, I think there is a lot of misinformation out there. लोग ये समझते हैं कि किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से मेरा मतलब है अनाज, ओट्स, वेजिटेबल, ब्रेड, कॉर्न, और ऐसे अगर आप लेते हैं तो आपका वज़न बढ़ता ही बढ़ता है। हमें समझना पड़ेगा कि नॉट ऑल कार्ब्स आर बैड, नॉट ऑल कार्ब्स आर evil, not all carbs are foe. There is actually different types of carbs. We have complex carbohydrates जो होते हैं आपके, जो millets, veggies जिसमें आपका फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। दे आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हेल्प यू इन वेट लॉस, और वो आपको एनर्जी सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। बट आप वो कार्ब्स कैसे इंटेलिजेंटली इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट में, व्हाट इज़ द क्वांटिटी, या आप ओवर डू कर रहे हैं डेफिनेटली रिफाइंड कार्ब्स को, दैट विल लीड टू वेट गेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस प्रिया। काफ़ी लोगों को ये भी एक मिथ है कि लाइक अगर हम कार्ब्स खाएँगे तो हमारा वेट गेन बहुत जल्दी हो जाएगा।
So they are completing avoiding the carbs in the diet, or instead of that taking the simple fiber and all. So what you Absolutely. say? Uh, Priya, can you repeat your question? I didn't really get it. काफी लोगों को लगता है कि कार्ब्स आर लाइक गेनिंग देयर वेट, तो क्या आपका भी यही सजेशन है कि डाइटिंग करते वक्त जो है हमें कार्ब्स को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, या एकदम क्रैश डाइट फॉलो करना चाहिए जिन लोगों को भी वेट गेन का कंसर्न है? यस, अगेन मैं यही एम्फसाइज करूँगी कि आप कंप्लीटली कार्ब्स अवॉइड ना करें. एंड आई कैन सी Nachiketa is saying some carbs give instant energy, some break the delay. And yes, that is very very true. आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं और किस क्वांटिटी में आप इंक्लूड कर रहे हैं. सो विल बी अगेन टॉकिंग अबाउट कि लो कार्ब डाइट क्या होती है, लो जीआई डाइट क्या होती है. सो विल बी टेकिंग इट अप द कार्ब्स पाथ देयर. Yes, Priya. Okay. So one more myth and fact is there. So काफी लोग जो है assume करके रखा है कि fat makes you more fat, and they are continuously avoiding ghee, oil in their diet. तो क्या हमें भी like oil और ये घी जो है completely restrict कर देना चाहिए? What audience thinks? I wanted to know your answer in the chat box. Please participate and just write it down your answer कि what do you think about ki fat makes you fat, or should I already like completely avoid it from the diet? Okay. Okay. ओके, आई कैन सी प्रिया, हमारे जो अटेंडीज हैं काफ़ी नॉलेजेबल हैं. एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ देम आर राइटिंग अनसैचुरेटेड फैट का भी उन्हें इम्पोर्टेंस पता है. Nachiketa is saying no fat is required in balanced diet. Naresh says yes, I will avoid fats in my daily diet. संदीप अरोरा जी से इसकी ट्रांस फैट बुरे हैं. तो मैं देख पा रही हूँ हमारी जो ऑडियंस है दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. यस, हमें समझना पड़ेगा कि नॉट ऑल फैट्स आर बैड फॉर यू. इट्स अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन. क्यों? क्योंकि आपके हेल्दी फैट्स भी होते हैं और आपके अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं. बट क्वांटिटी जो है इट कैन आइदर मेक और ब्रेक योर NAFLD कंडीशन. तो आपको समझना पड़ेगा जो हेल्दी फैट्स, फॉर एग्जाम्पल आपके जो फैट्स आपके नट्स या ऑयल सीड्स में पाए जाते हैं, फिश में पाए जाते हैं, स्पेशली ओमेगा 3, वो आपकी बॉडी में बैड फैट जो होता है, LDL जो होता है, उसे कम करने में मदद करते हैं. एंड इट हेल्प्स यू टू इंक्रीज गुड फैट, जिसे HDL बोला जाता है, उसे इंक्रीज करने में मदद करते हैं. The real culprit here is actually the quantity of fats that you're taking, the excess sugar and refined oils. आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि nuts and oil seeds, yes, they are good fats, but अगर आप उन्हें prescribed quantity से ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, so they will also start adding to bad fat in your body. So quantity is very very important here. So yes, that's pretty much about the myths and facts part of it, Priya. Thank you for awareing our audience. Thank you so much. You can go ahead with the slide. Yes. Okay. Yes, so अभी तक we have largely talked about कि NAFLD क्या है, common myths और conceptions क्या हैं. यहाँ पे I could also see मैत्री has asked, shall we replace rice with roti? कविता जी ने हमें ऊपर कहा था कि वजन कम करना है, weight loss is a big issue in NAFLD. So I wanted to take a moment and explain why losing weight in NAFLD is very very crucial and very very important. There are beautiful research paper out there that says कि अगर आप अपने शरीर का 5% वेट भी कम करते हैं, सो इट कैन रिड्यूस योर IBS सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि लेस स्लीप, जो आपका पेन रहता है या जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट अगर 60 kg का कोई वेट है, या फिर फॉर एग्जांपल आई एम 60 kg अडल्ट, तो अगर मैं अपनी बॉडी का 5% वेट भी कम करती हूँ, फॉर एग्जांपल 3 kgs वेट भी कम करती हूँ, तो मेरे जो NAFLD की कंडीशन है, उसको जो सिम्टम्स है, कॉम्प्लिकेशन है, वो कम हो सकते हैं. एंड अगर मैं अपनी वज़न का 10% वेट भी, इवन इफ आई लूज 10% ऑफ माई बॉडी वेट, आई कैन रिवर्स माई नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स रियली अमेजिंग टू सी कि अगर आप अपने शरीर का केवल और केवल 10% वज़न भी कम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम 60 kg अडल्ट, एंड अगर मैं 6 kgs भी कम करती हूँ अपनी बॉडी वेट का, सो आई कैन रिवर्स माई नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. अब
वो वेट लॉस करना कैसे है, व्हाट आर द राइट स्टेप्स, व्हाट आर द राइट स्ट्रैटेजीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें क्रैश डाइट्स यहाँ पे फॉलो नहीं करनी है। अगर आप क्रैश डाइट्स करते हैं, खाना बंद कर देते हैं, तो क्या होगा, आप थोड़ी समय के लिए तो वजन कम कर पाएंगे, बट अगेन यू लैंड इन द सेम साइकिल, एंड वो हम नहीं चाहते हैं। So that's why doing a sustainable weight loss is very, very important here. So I'll be talking about three simple strategies जिन्हें use करके we can manage our weight more effectively. फर्स्ट अप इज़ डेफिनेटली कैलोरी डेफिसिट डाइट, जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कैलोरी डेफिसिट क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो कम करने की ज़रूरत है, फैट्स जो है वो हमें कम करने की ज़रूरत है। अगर आप डायबिटिक है तो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ध्यान देना पड़ेगा। हेपाटोप्रोटेक्टिव फूड्स, देयर आर सर्टेन फूड्स विच कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट एंड हैव गुड रिसर्च आउट देयर, जो कि आपकी लिवर हेल्थ को बढ़ाते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ज़रूरी है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनमें फैटी लिवर के साथ साथ इन्फ्लेमेशन का भी प्रॉब्लम या दिक्कत रहा है। सो डेफिनेटली एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड कैन हेल्प देयर। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अगेन इन टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग आपकी 10 आवर का विंडो होता है, 12 आवर्स का विंडो होता है कि आपको उतने ही समय के लिए खाना खाना है। फॉर एग्जाम्पल 9 o'clock यू हैड योर फर्स्ट मील, बाय 7 PM यू आर ट्राइंग टू हैव योर लास्ट मील ऑफ द डे। सो इन सब चीज़ों से आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, आपकी जो लिवर हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है। एंड जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं, I'll again emphasize, I'm not removing carbohydrates, I'm not saying remove carbohydrates, but limit carbohydrates in your diet. Why? Because when you limit carbohydrate, your body switches to burning fat from carbs to fat. तो आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैट है बॉडी में वो बर्न होना चालू हो जाता है। सो तो सिमरन, तो इस केस में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, जो काफी कॉमन है नाउअडेज, तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, जस्ट टू क्योर, लाइक टू टेक अ प्रिकॉशंस फॉर नाफल। Yes, Priya, very interesting and important question. I think a lot of people feel that intermittent fasting is the answer अगर उन्हें NAFLD है, but आपको समझना पड़ेगा कि for intermittent fasting there is a contrasting research. कई रिसर्च बोलती कि yes, कैलोरी डेफिसिट करने से, इंटरमिटेंट करने से आपका वजन कम होता है, बट द सेम टाइम वहाँ पर हार्ट हेल्थ भी आपकी कॉम्प्रोमाइज होती है। So what I'll say, ideal situation is you should speak to a nutritionist who specialize in fatty liver or intermittent fasting, and probably she can give you a combination of it based on the medical condition you have. Because अगर आपको cardiovascular disease का condition already है, तो it can again intermittent fasting आपके लिए इतने अच्छे से काम करे या ना करे, again यहाँ पे डाइवर्स रिसर्च है, डेटाबेस है, बट आई वोंट एडवाइज इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर एवरी वन, बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट फॉर एवरी वन एंड नॉट एवरी वन कैन फॉलो इट। सो दैट्स माई पीस ऑफ एडवाइस ऑन दैट। Okay, right. Okay. All right. Kavita ji saying Dixit diet. Kavita ji, I'm not really sure about the Dixit diet. Probably you can elaborate more. Manik Goyal ji saying, is it good or bad to take sugar once in a day? Manik Goyal ji, if you are diabetic, I won't advise sugar to you. In fact, we can go for some non-calorie sweeteners जो होते हैं हमारे, स्टीविया हो सकता है, बहुत अच्छा आपको easily available है मार्केट में. So I'll advise probably you can go for that. And अगर आपको NAFLD का प्रॉब्लम है, NAFLD का इशू है, so what I can say कि again speak to a nutritionist, probably she can adjust few calories from your day ताकि आप 1 चम्मच चीनी तो ले पाएँ, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप बाकी जगह से शुगर जो है उसे लिमिट कर रहे हैं, उसे कम कर रहे हैं अपनी डाइट में कहीं ना कहीं। यस, second, very important, exercise. I've talked about a lot. Being a nutritionist, I tell about eat this, eat that, avoid this. But a lot of people fail to understand that exercise is also equally very, very important. Why? Because we always say that diet is 50%, exercise is 50%, and together they make a kingdom. राइट? तो एक्सरसाइज जो है वो आपकी स्पेशली लिवर हेल्थ में, NAFLD में बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर सकती है। कार्डियो वर्कआउट, मॉडरेट टू हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, आपका मसल गेन में हेल्प करा सकती है। सो माई एडवाइस इज सिर्फ आप वॉक लेना चाहिए, बिकॉज यूजली इंडियंस का रहता है कि हमने सुबह 1 घंटा वॉक कर ली, इट्स मोर देन इनफ फॉर अस।
येस डेफिनेटली इट्स गुड यू आर गोइंग फॉर वॉक, बट अलॉन्ग विद दैट अगर आप थोड़े से वेट लिफ्ट्स कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 2.5 kg आप वाटर बॉटल्स ले सकते हैं, उसके साथ आप लिफ्टिंग कर सकते हैं. माई मदर इज़ 55 years ओल्ड. मैं उन्हें थोड़ी सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमेशा घर पे कराती हूँ. इनफैक्ट आई ऑल्सो लिफ्ट वेट्स. सो देर इज़ नो टैबू अराउंड दिस. आई रिकमेंड टू ऑल माई पेशेंट्स आउट देयर कि अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज के थ्रू भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाइए. बिकॉज एक्सरसाइज करके आप अपने फैटी लिवर को कम भी कर सकते हैं, आप अपने डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडर क्वालिफाइड ट्रेनर यू वर्क एंड अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या काम करता है. लास्टली, बैलेंस इज़ द की हियर. कि अगर आप एनर्जी बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, जितना आप खाना खा रहे हैं उतना आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपका वजन सेम रहेगा. लेकिन आपका जितनी रिक्वायरमेंट है अगर आप उससे कम ले रहे हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आप वेट लॉस की कंडीशन में जाते हैं. सो दैट्स वाई नेगेटिव एनर्जी बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी स्क्रीन पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, लीव इट ऑन अस, लीव इट ऑन द न्यूट्रिशनिस्ट एंड विल हेल्प यू आउट कि आपको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस सस्टेनेबली और हेल्दी वे में कैसे मेंटेन करना है. लास्ट अप वी हैव स्ट्रेस. एज आई प्रीवियसली टॉक्ड अबाउट कि अगर आप लंबे समय तक आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप बॉडी के फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर रहे हैं. वो मैकेनिज्म एक्टिवेट होने की वजह से आप कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, एंड कॉर्टिसोल आपकी लिवर के अराउंड और ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट करता है. तो यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होना, एक वेलनेस कोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है. सो इन समरी इफ आई हैव टू से, कैलोरी डेफिसिट होना, कार्डियो रेजिस्टेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी जब आप एक कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व करते हैं तो यू गो फॉर अ सस्टेनेबल वेट लॉस. वेट लॉस के साथ साथ आपके ब्लड पैरामीटर्स जो लिवर के हैं, लिवर प्रोफाइल है, वो इम्प्रूव होते हैं. आपका फिब्रोसिस जो है, आपका ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो लिवर है, लिवर हेल्थ है, वो इम्प्रूव होती है. एंड अल्टीमेटली येस, you can reverse your fatty liver, you can reverse back your condition if you know these three things, if you know how to follow this on at least 12 to 14 weeks sustainable period. All right, thank you Simran for sharing lots of information about NAFLD. So अभी तक हमने देखा कि हम कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं. That's why we are here to help you out, and we launched the 12 weeks care plan for the patient who's having a NAFLD condition, or they are like they think they are prone to NAFLD, या उनको डायबिटीज का कंसर्न है, या उनको कार्डियोवास्कुलर का प्रॉब्लम है. तो वो भी इस चीज को यूज करके, इस चीज में एनरोल करके आप अपना नाफिल का जो कंडीशन है उससे बच सकते हैं. तो दैट्स व्हाई वी आर लॉन्चिंग हियर 12 वीक्स केयर प्लान फॉर नाफिल पेशेंट, एंड इसमें यू विल गेट अ न्यूट्रिशनल काउंसलिंग. तो दैट इज सो पर्टिकुलर एंड पर्सनलाइज फॉर द न्यूट्रिशनल. जो भी आपका चैलेंज है, तो न्यूट्रिशनल आपकी जो रिक्वायरमेंट है, राइट, तो वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा. एंड here we are having like exercise जो होता है कि एक्सरसाइज सेशंस वी आर प्रोवाइडिंग यू, जिसमें मॉडरेट से लेके हाई इंटेंस वर्कआउट आपको कराया जाएगा. दैट इज ऑल ऑनलाइन, तो कहीं आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज में. और आपको जो काफी आजकल जो लाइफस्टाइल है वो काफी स्ट्रेस और एंजाइटी से जो है भरा हुआ है, तो उसमें यू विल कम टू नो कि हाउ टू लर्न द टेक्निक्स टू रिलीव फ्रॉम स्ट्रेस और एंजाइटी. जो कि मैं देख पा रही हूँ कि काफी लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी का कंसर्न आ जाता है. तो दे विल help you out ki how to reduce the stress condition by doing such tactics, or they're having different techniques to reduce the stress levels. एक्सरसाइज जो है आपका बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, जिसमें कि आपका एनारोबिक है, एरोबिक्स है, आपका वेट लिफ्टिंग है. तो ये सारी एक्सरसाइज होने वाली हैं. इसमें अगर हम डाइट की बात करें तो लो कार्ब डाइट, अगर आप इसमें अगर आप डाइट फॉलो करेंगे तो यू विल प्रोवाइडेड बाय द लो कार्ब डाइट्स. क्या होता है, लो फैट डाइट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर इंक्लूड रहेगा कुछ ऐसे लो जीआई फूड जो कि आपकी कहीं ना कहीं डायबिटीज को भी मेंटेन करेंगे. तो इफ यू हैविंग अ डायबिटीज कंडीशन, डोंट वरी. अगर आपको भी लगता है कि आपको डायबिटीज है और नाफल्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे कि सिमरन ने हमको बताया कि पेशेंट हु हैविंग अ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, पेशेंट हु हैविंग द डायबिटीज कंडीशन, उनको जो है नाफल्ड का कंडीशन होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं. और आजकल की लाइफस्टाइल आप जानते हैं कि सारे जो हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं. तो आई थिंक कहीं न कहीं NAFLD
हम सभी NAFLD प्रोन हैं। तो हम जो लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में NAFLD जैसी प्रॉब्लम या जिसको भी डायबिटीज़ जैसा बहुत कॉमन हो गया है डायबिटीज़, राइट? ये NAFLD होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स व्हाई वी आर लॉन्चिंग द 12 वीक प्लान हियर। जिसमें कि आपका जो डाइट आपको प्रोवाइड जो काउंसलिंग होगा, बिफोर गिविंग यू द काउंसलिंग विल टेक द डाइट हिस्ट्री, विल टेक द मेडिकल हिस्ट्री कि आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। वी आर प्लानिंग द डाइट अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल प्रेफरेंस कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। टोटल यू विल गेट अ 10 न्यूट्रिशनल काउंसलिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो आपको जो है 12 वीक्स तक जो है कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो है हमारे एक्सपर्ट्स के, वो आपको हेल्प करेंगे। एक होलिस्टिक अप्रोच रहेगा उनका कि जिससे कि आपका NAFLD की जो कंडीशन है एक अगर है तो वो रिवर्स हो सकती है, और अगर नहीं भी है तो ये चांसेस बहुत कम कर देगा आपको कि NAFLD इन फ्यूचर में आपको हो सकता है, राइट? और आपको इसमें क्या है, प्रॉपर 36 वर्कआउट सेशन मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं 3 टाइम्स इन अ वीक जो है लाइव योगा आपका जो एक्सरसाइज सेशन रहेगा, जिसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज इंक्लूडेड हैं। जैसे कार्डियो वर्कआउट इंक्लूड है, आपका मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट इसमें आ जाता है। कुछ ऐसे टेक्निक्स आ जाते हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस रिमूव हो सकता है। स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को आप मैनेज कर सकते हैं बाय डूइंग दिस। इसमें वी आर लॉन्चिंग द एप्लीकेशन आल्सो हियर, जिसमें आप अपने कैलोरी काउंट पे जो है मोर फोकस कर सकते हैं। दैट इज़ द NAFLD डेली ब्लूम, जो कि आपका प्ले स्टोर और आपका ये ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। तो यू कैन डाउनलोड दिस टू नो अबाउट कि आप दिन में कितने कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या बिकॉज़ ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द कंडीशन, तो आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि आप कितना कैलोरी इनटेक कर रहे हैं बेसिकली। तो आपकी डाइट कैलोरीज़ क्या है? आपकी जो हर एक मील है, आप जस्ट ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें अपना मील कि यू आर ईटिंग राइस इन द लंच, तो यू कैन ऐड ऑन दिस थिंग्स। जो भी आप इंग्रीडिएंट आप अपने डाइट के अंदर ले रहे हैं, जस्ट ऐड ऑन द ingredient in this list and they'll tell you the how much calorie your meal having, right? Name of the app is Yogiji NAFLD Daily Bloom is the name of the application. You can download from Play Store or App Store. Both is working, both are available. तो आपका जो एक्टिविटी ट्रैकिंग है कि पूरे दिन में आपने कितना एक्टिव रहे हैं, कितने स्टेप्स आपने लिए हैं या क्या एक्सरसाइज आपने की है, दे आर continuously tracking you on calorie count in terms of activity tracking. So this will going to be a very good option कि जिससे आपका all in one आप इसमें कैलोरी काउंटर चेक कर सकते हैं, तो you will track your activities as well. तो इसमें आपको सब कुछ जो है एक कॉम्बो पैक है, दैट्स व्हाई वी आर लॉन्चिंग हियर अ 12 वीक्स अ केयर प्लान फॉर NAFLD, राइट? इसमें आपका बिफोर प्लानिंग अ डाइट, इसमें आपका डाइट हिस्ट्री एंड ऑल लिया जाएगा। उसके बाद ही आपका जो है आप प्रॉपर काउंसलिंग किया जाएगा। सो वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम ऑफर, सिर्फ और सिर्फ अप टू टिल टिल दिस वेबिनार एंड आपके पास ये ऑफर लिमिटेड है, एंड दैट इज नॉट ओनली द एक्चुअल प्राइस इफ यू लुक आउट दैट इज 12,000, बट इट विल ओनली कॉस्ट यू 6,000 फॉर नाउ, and you can easily avail this offer. You can just click on that link which is dropping in the chat box. My team is continuously sharing that link. You can just click on that link and you can avail this offer. You can join this. ओके, डेली ब्लूम NAFLD इज़ गॉट इट। ओके, हाँ जी योगी जी, बिल्कुल वही ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक टू अवेल दिस ऑफर राइट नाउ, एंड आप भी जो है अपनी नॉर्मल लाइफ गेन कर सकते हैं। टू गेन बैक योर नॉर्मल लाइफ, तो वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज पेशेंट हैं या फिर आपको भी लगता है कि आपको NAFLD होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यू कैन अवेल दिस ऑफर। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, यू कैन quickly enroll with us, because that is very very limited seat we have, very very limited time we have. So this is the only time you can avail this. So आप जल्दी से इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं एंड आप भी इस ऑफर को जो है ऑप्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग in the one plan. Only 12 weeks plan में you'll get a nutritional counseling, 10 nutritional counseling रहेगा, जो कि ऑनलाइन आपका न्यूट्रिशनल सेशन रहते हैं। जो एक्सपर्ट हैं हमारे न्यूट्रिशनिस्ट के, वो आपको काउंसलिंग करेंगे। और इसमें आपको 36 वर्कआउट मिलेगा, लाइक आपको जो एवरी वीक है 3 टाइम्स जो एक्सरसाइज के जो सेशन है दैट इज लाइव होने वाला है, और दैट इज
ट्रस्ट मी, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। इसमें आपका चाहे तो वेट लॉस का कंडीशन है, चाहे आप अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, या आप डायबिटीज को भी रिवर्स कर पाएंगे अगर आप ये फॉलो करते हैं तो। ऑल राइट योगी जी, मेरी टीम ने लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, एंड शी इज कंटिन्यूअसली शेयरिंग द लिंक. You can just click on that link, and don't think that is for 1 month, that is for 3 months. So it will cost you only 2000 per month. So don't worry about the price. I think it can be on next time, but अभी priority जो है आपकी health है, और health priority होना भी चाहिए. तो you can click on that link and you can enroll with us. काफी लोग जो हैं हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो दे विल गेट अ मोर रिलीफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर Yeah. NAFLD प्लान. श्रेया, I'll just इसमें quickly answer. कविता जी ने क्वेश्चन पूछा एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के लिए. डाइट क्या है जी? I'll quickly answer that. कविता जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इज बेसिकली जहाँ पर हम जो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में बढ़ा के देते हैं. इट कैन बी स्पेसिफिकली विटामिन ई, जिंक, ओमेगा 3, या आपके सर्टेन कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि बढ़ा के दिए जाते हैं सो दैट आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, स्पेशली नैश की जो कंडीशन है, उसमें वो आपकी हम्म, मदद करेगी एंड आपकी ओवरऑल जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में उस वो भी मदद करने में उसमें भी जी आपकी मदद करी जाएगी. हाँ, यस. सिमरन, आई थिंक इन्फ्लामेटरी डाइट हम उसको भी कह सकते हैं जिसमें हम जैसे जिंजर है, गार्लिक है, ऐसी चीजें जो हमारी स्पाइसेस है, हर्ब्स है, उसको हम यूज करके जो है डाइट में इन्वॉल्व अगर करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो समवेयर हेल्प इन दिस NAFLD एज वेल. तो राइट, थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड क्वेरीज. सो आप भी थैंक यू सो मच योगी जी टू एनरोल विद अस. आप भी इस ऑफर को एनरोल कर सकते हैं. जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक. आप इसमें एनरोल कर सकते हैं जस्ट फॉर 3 मंथ. 12 वीक्स प्रोग्राम है, तो आप भी इसमें एनरोल कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग दैट पर्टिकुलर लिंक, एंड यू हैव टू just enroll with this program. My team is continuously sharing the link, so you can just click on that link and you'll come to see ki how effectively it will work. So this is the first step you can take towards your health, and I think that is very very important nowadays. Like if you also want to lose weight, if you want to like more concern about like your liver, right, so you can enroll with this program. Just a click away, you can just click on that and you're come enrolling with us. So you can also use that link. Particular link is also sharing in the chat box, if you can see. So before giving you the diet counseling, our expert is taking the diet history, that what exactly you are having, the medical condition, if you are having any infection or inflammation or some other treatment also going on, तो उसके साथ साथ भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. तो देर इज नो वरी अबाउट कि आपको अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई मेडिकेशन चल रहा है, बिकॉज वी आर गोइंग सो नेचुरल. सो nothing to worry. अगर कोई ट्रीटमेंट पहले से भी चल रहा है, just go with this. You can just click on that link, and this you can just a click away from this offer. You can just grab this now. Thank you so much Kavita ji for enrolling with us. And Dhruv ji कह रहे हैं, would like to love to take the Daily Bloom NAFLD care plan for 1 month for one of my family member. You want to son? Okay, all right. Dhruv ji, जो भी enroll करना चाहते हैं, you can just click on that link एंड आप एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ, एंड दैट इज फॉर 3 months. Right, so it's not the price for 1 month if you're thinking of. See, that is completely for 3 months, right? Thank you so much Kavita ji and Dhruv ji and Yogi ji for enrolling with us. Just आप ध्रुव जी क्लिक कर सकते हैं अपने, आपको किसी भी फैमिली मेंबर के लिए अगर आप करना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन जस्ट क्लिक अवे. तो आप क्लिक इस पे जो आपका लिंक शेयर किया हुआ है हमारे चैट बॉक्स में, हमारी टीम शेयर कर रही है कॉन्टिन्यूसली, यू कैन यूज दैट लिंक. ओके नरेश जी, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज अगर आपको अभी भी है, तो यू कैन आस्क मी राइट अवे. सिमरन जी वी हैव, तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. और फिर जो कि है कि अभी आपका जो है क्वेरीज का जो हम आंसर कर पाए, एंड यू आर रेडी टू गो अहेड विद दिस प्रोग्राम, राइट? Okay, thank you so much Kavita ji. And Naresh ji, you can use that link, and
pay this amount, you can ready to join us. And if you already paid, just send me the message in the chat box, you're already paid for this. And you will what we are providing here, we are providing you the 9 diagnostic test. इसमें हम बिफोर एंड आफ्टर का जो है आपका ब्लड टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कि हम देख पाएंगे कि आपका पहले का कंडीशन क्या था और आपका ज्वाइन करने से पहले का आपका कंडीशन है क्या, आपके पैरामीटर्स हैं, और आफ्टर 3 मंथ्स इफ यू कंप्लीटेड दिस 12 वीक्स, राइट, उसके बाद क्या कंडीशन रहती है, तो आप कंपेयर भी कर पाएंगे कहीं ना कहीं. तो यू कैन जस्ट quickly click on that link and you're ready to enroll with us. इसमें यू विल कम टू सी द कैलोरी काउंटर. इसमें आप स्लीप ट्रैक कर सकते हैं, अपना एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं, राइट. इसमें आपको 36 जो है लाइव वर्कआउट सेशन होने वाले हैं, जिसके अंदर ओके ऑलराइट, इसमें आपको नरेश जी कह रहे हैं कैन आई गेट एक्सपर्ट कॉल. Okay, Naresh ji, you will definitely get the call after this webinar. But trust me, it is very, very effective. इसमें कोई medications नहीं है, कोई supplementations नहीं है. We are not providing here any supplementation or medicines here to treat this NAFLD, to reverse this NAFLD condition. All we are going so natural with the exercise, with diet, with आपका ये जो रिलैक्सिंग टेक्निक्स है, जो स्ट्रेस को कम करता है, तो वो आप without thinking any second thought, you can just click on that link and you can ready to enroll with us. I'm Yes. interested in starting my journey. Okay, Priya, ab I'll just quickly answer one more question. I think Yogi has put it on the top कि पहले भी he has already worked with the nutritionist and वहाँ पे he felt that कि जो उन्हें plan दिया गया था he was not able to follow and plus उन्हें हर बार meal separately बनानी पड़ती थी. I think this is a very common जो क्वेश्चन आता है, फीडबैक आता है हमारे पेशेंट्स की तरफ से. सो वी ऑलवेज मेक श्योर एटलीस्ट जो आपको डेली ब्लूम नाफिल्ड बाय डॉक्टर एडीज में आपको फैट टू फिट नाफिल्ड केयर प्रोग्राम दिया जा रहा है, यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज इट फॉर ऑल योर फैमिली मेम्बर्स. नाफिल्ड का जो डाइट प्लान ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नाफिल्ड के पेशेंट को लेना है या जिसको फैटी लिवर का कंडीशन है, या आपके घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स भी ले सकते हैं, उनके लिए भी इक्वली हेल्दी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हेपाटो प्रोटेक्टिव फूड्स ऐड करे जा रहे हैं, लो कार्ब लो जीआई. इनफैक्ट आई से टेक इट एज अ फैमिली चैलेंज, टेक इट समथिंग जहाँ पर सिर्फ आप अपनी हेल्थ इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, आप अपने बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्थ और कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे हैं. एंड it's to make your absolutely Kavita ji, it's not just you who is getting fit here, it's your entire family. because जो यहाँ के workout sessions हैं, I definitely feel आप अपनी पूरी family को if you can get together everyone, morning sessions हमारे largely रहते हैं, नहीं तो we have pre-recorded हमारे जो sessions हैं इन्हें record करके भी दिया जाता है. सो आई डेफिनेटली बिलीव दिस इज़ समथिंग जो आपकी इंटायर फैमिली से बेनिफिट ले सकती है. एंड 12 वीक्स इज समथिंग 3 months का इट्स डेडिकेटेड सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम द न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एंड एट अ वेरी मिनिमल कॉस्टिंग एज प्रिया हैज ऑलरेडी टॉक 2000 पर मंथ, अब 6000 आप 12 हफ्ते के लिए दे रहे हैं. सो आई फील इनफैक्ट जी. अलॉन्ग विद दैट डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड के बारे में अगर आप प्रिया बात कर सकते हैं थोड़ा. तो सिमरन, वैसे भी इस 2000 इज अ वेरी वेरी नॉर्मल कॉस्टिंग वी आर ऑफरिंग हियर. आई थिंक इतना तो हम लोग काफी पार्टीज में और अपने ऊपर कभी क्लोथिंग में, शॉपिंग में इतना हम इजीली स्पेंड कर सकते हैं. तो आई डोंट थिंक सो जब हमारी हेल्थ की बात आती है तो हम ये प्राइस हमारे लिए मैटर करने वाला है, राइट. तो काफी जो है अफोर्डेबल प्राइस में वी आर लॉन्चिंग हियर योर दिस 12 वीक्स ऑफर, एंड दैट इज फॉर 3 months, नॉट फॉर 1 month. सो आपने अब्दुल जी, आई एम इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग माय जर्नी, तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो मेरी टीम कॉन्टिन्यूसली शेयर कर रही है. तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू आर रेडी टू एनरोल विद अस फॉर 3 months, right guys? So this is not for 1 month, not for 2 months, it's a pack for 3 months. So it is not repeated again. If you want to really join us, if you really want to treat your the condition for NAFLD, if you're having the diabetes condition or you're prone to NAFLD, right, you can just join us. तो आप इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, and then you'll get a like many of this the thing, the dietary the diet part, you'll come to see how to go for the specific mind relaxing techniques,
right? 36 workout session we are having, 9 diagnostic tests we are having. So इसमें आपको एक comparison मिल जाता है कि before going to like this program, तो आपको एक blood test मिल जाएगा जिसमें कि you'll come to see कि what exactly the parameter is, and you'll come to see कि after results क्या रहेंगे, right? Okay, link is showing paid already. Okay, Ruban ji, you can drop the number, you can drop your phone numbers in the chat box. uh, और आप इस लिंक को डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, या कोई क्वेरी अभी भी अगर आपको लगता है कि यू वांट टू आस्क दिस with the expert, you can drop the query, whatever it is. You can just write it down the message in the chat box. I think we love to answer that. And कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आपका ज्वाइनिंग के लिए, या कोई क्वेरी है आपकी डाइट को लेकर के, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप मी द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए. संडे के लिए आपने हमारा अपना टाइम हमारे लिए निकाला, एंड दैट्स वेरी गुड. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू ऑल द जॉइनीज. थैंक यू सो मच.